Okay, beta. So we are familiar with the layout of the tide tables. This is what we did in the last session. I'll quickly revise and go through. These are the selected pages which we are using for our calculation. And standard ports is what we are doing initially. Standard ports are those ports for which daily predictions are given in the tide tables. Daily prediction means they will give us the height and time of high water and low water like this. So these are known as daily predictions. They are given in part 1 of the tide tables. Then you have a list of the standard ports given in the inside of the front cover for all the 3 volumes. It is there. Then in volume 1, you will find a graph like this. For every port, there will be a separate or different graph. Okay. Why there is a different graph for every port? This doubt can arise in your mind. The reason for this is beta, in volume 1 ports, this area is basically European waters and Mediterranean Sea area. Now here, at different places, the nature or property of the tide is very much different. At some port, the tide rises very fast, okay, and falls slowly. At some other port, it could be totally different. It may be rising very slowly and falling very fast. So because of that, one single graph or diagram cannot be used for all the places here. So you will find this tidal curve or graph for every port in volume 1. Okay, now in this graph also, sometimes you will see there are 2 lines depicting the graph. One is a dotted line, another one is a solid line. So these 2 lines you can see on the right hand side top of the graph here. They are given for spring and neaps. So if the range of the tide is very high, that means a spring tide, we use the solid line. And if the range of the tide is very less, that means it's a neap tide, we use the dotted line. So that is why these dotted and solid lines are provided. Okay, there are 2 scales which are given. Left hand side top of the diagram, you see there is a scale given for high water, and left hand side bottom, if you see, there is a scale given for low water. So we will see how do we use these scales. At the bottom of the curve, you will see they have given us high water in the middle. Here you can see the high water is given here. We write the time of the high water in the box below this. On one side, you see they have given plus scale, plus 1 hour, plus 2 hour, plus 3 hour, plus 4 hour. On the other side, you see negative scale. Plus means high water plus 1 means 1 hour after high water. Minus 1 means 1 hour before high water. So on the left side, the minus which you see is basically before high water, and the plus signs which you see on the right hand side is after high water. So if you want to find the tide after high water, you go in the plus zone, and if you want to find the height of tide before high water, you go into the negative zone. Okay, these are the tidal corrections, and these we will be using when we calculate the height of tide at secondary ports. You can see there are time differences and there are height differences which are mentioned here. And the last thing, they will give us the seasonal changes which are also given. These are also used when we calculate the height of tide at secondary ports. Now let's go into volume 1 and know how to calculate the height of tide at any given time. So first of all, we need to understand that what are the conditions in which the graphs are usable. So these graphs are usable in special conditions, in a set of conditions. For volume 1, each standard port has its own graph. So
when you are calculating the height of tide for that particular port, you have to use that particular graph only. Okay, beta, just give me 1 minute. Okay, beta, sorry for interruption. There were some candidates who are applying to MMD for their exams, so they had some doubts. So anyway, each standard port has its own graph. Like you can see, this is the graph for Antwerp port. Okay. Now, time duration between successive tides should be between 5 and 7 hours. That means the duration between a high tide and low tide for whichever port you, or whichever date you are calculating it, it should be within 5 to 7 hours. In case you find the duration of tide is less than 5 or more than 7 hours, then in that case we cannot use the graph. So how do we calculate the height of tide then? We use a different method which is known as simple harmonic method. Now this method will come to you when you come in phase 1. This is not in syllabus for second mates. So whichever question you get, you will see the duration of the tide would be between 5 to 7 hours. That means the time interval between a high water and low water will be between 5 to 7 hours. Okay. Now, as I told you before also, sometimes you see there are two graphs or curves which are given. One is the dotted line curve. You can see this here. This is the dotted line curve. And the second one is solid line curve. You can see the solid line also here. So which curve should we be using it? Now, to decide whether we use the dotted or the solid or something in between is what we use the range of the tide for. So what is the range of the tide?
Range of the tide is height of high water minus the height of low water. So difference between high water and low water heights gives us the range of tide. Now, as you can see in this diagram, on the right hand side top, we see if the range of the tide is 5.5 meters, we will use the spring curve, which is the solid line. And if the range of the tide is 4.0 meter, we will use the dotted line. Okay. Now, if the range is in between these two values, let us say range is neither 4.0 nor 5.5. The range is 4.5. Then what we do? Then we have to interpolate between the dotted line and the solid line. How do we interpolate? We will do a question and see how interpolation is done. So that is what is written here in the last point. You see, to decide the curve on the graph, whether we should use the dotted line or the solid line, it is the range of tide which matters and not the time difference or the duration of tide. So for selecting the graph, we have to find out the range of the tide, and that tells us which of the curve is to be used or how interpolation is done between these two. Okay, now if we are required to interpolate between the spring curve and the neap curve, that means the solid line and the dotted line, then we are allowed to interpolate between them, but we should not extrapolate between them. What is the meaning of extrapolation? It means we should never go out of this zone. Our graph should always lie between the dotted line and the solid line in the zone which I have highlighted. We should never go outside on the side of the dotted line, and we should never go outside on the side of the solid line. What does this mean? This basically means that if the range of tide is greater than the spring, like in this case, you see the spring range is 5.5 meter. Let us say in your question, the range comes to 5.8 meters. Now, in that case, you do not go out of the diagram if the range is more than spring tide, more than 5.5, you use the solid line only. Okay. If the range is less than neap tide, let us say the range is less than 4.0. So in that case, you use the dotted line only. Okay. So just have a look at the graph beta. This one more candidate is there who has some doubt regarding his files to MMD. Just give me one more minute.
Okay beta. So for ranges greater than the spring range, spring curve should be used, and for ranges less than neaps, the neap curve should be used. Okay. Now let's open up an example and try to find out the height of tide. The example which we are taking is calculate the height of tide at 0630 at Antwerp on 2nd January 1992. So this is the question beta. Please note it down in your notebooks. We have to find the height of tide at 0630 at Antwerp on 2nd January 1992. So please note this down in your notebooks. We will be doing it. All of us will be doing it step by step. So you should keep your calculators and the tables ready, the tide tables ready. Step by step, I will be telling you how we have to go ahead and solve this question. So note it down, beta. Question done. Yes. Okay, now step 1 of solving. First of all, we go to the index, which is inside of your front cover, and we find out the page number for Port Antwerp. So all of you go there inside of the front cover and tell me what is the page number for Antwerp, beta? 182. 182. Very good, beta. So you can see Antwerp here in the inside of the front cover. It tells you page 182. Very good. So let's go to page 182 now. Now, once you go to page 182, we will note down the data for the date and time which we require. So बेटा जो टाइम के लिए हमें हाइट ऑफ टाइड चाहिए उससे पहले का टाइड और उससे बाद का जो टाइड है वो अब हमने नोट डाउन कर लेना है. So can you tell me before 0630 what is the time of the day for which tide is given? 0119. Very good. So this is the daily data. You can see it here for Antwerp port, and the date is 2nd January. So you can see before 0630, the time which is given is 0119 and the height is given as 5.1. So note this down in your notebooks. Okay, now after 0630, the next time which is given to us is 0801 and the height of tide is 0.8 meter. So we will also note this down in our notebooks, and the height of tide which we require is 0630. So I have put a question mark here. This is what we require. So just note down this data in your notebooks, beta. Everybody got it, beta? Any doubts? Anybody having difficulty finding? यस सर, वो डिजिटल एडिशन में सर उसमें रोमन डिजिट्स में लिखा हुआ है तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, मैं फाइंड कर रहा हूँ. Okay, beta digital. Okay, I will share it with you. Do you don't have a soft copy, beta? ओके सर, गॉट इट सर. मिल गया बेटा? यस सर, मिल गया. Okay. Or beta, anybody having problems finding this data up to here?
ओके, वेरी गुड. सो लेट्स प्रोसीड अहेड. अब बेटा नेक्स्ट चीज जो हमें फाइंड आउट करनी है, स्टेप नंबर 3, we calculate the duration of tide and the range of tide. ड्यूरेशन ऑफ टाइड क्या होता है? हाई वाटर और लो वाटर के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, इसे बोला जाता है ड्यूरेशन ऑफ टाइड. और रेंज ऑफ टाइड क्या होता है? हाई वाटर और लो वाटर के बीच में हाइट का कितना डिफरेंस है, हाउ मेनी मीटर्स, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ टाइड. So can you calculate the duration? सर एक बार सेकंड स्टेप समझा सकते हैं सर, छूट गया था मेरा. ओके बेटा, वेरी सिंपल एंड इजी. आप पेज 182 पे पहुंच गए बेटा? यस सर. ओके, मुझे बताओ हमें कौन सी डेट के लिए टाइड निकालना है? सर 2 जनवरी सर. वेरी गुड. अब बेटा पेज 182 पे 2 जनवरी की डेट में चले जाओ. यस सर. जिस टाइम के लिए हमें चाहिए उससे पहले का टाइम और हाइट क्या लिखी हुई है वहां पे? Sir, time is given 1 hour 19 minute and height is given 5.1 meters. वेरी गुड. देखो बेटा ये वही टाइम हमने यहाँ लिखा है. Yes, ओके, sir. Okay, sir. 6:30 के लिए हमें चाहिए. अब 6:30 के बाद का टाइम भी ढूंढो. Yes, sir. Then it is 1344 hours and height is 5.2 meter. बेटा 0801 भूल गए? Sorry, sir. 080. Yes, sir. हाँ, सो ये देखो 0801 और हाइट 0.8, ये हमने नोट कर लिया है बेटा. ठीक है. Yes. Yes, sir. ओके, अब इससे आगे हमें ढूंढनी है ड्यूरेशन ऑफ टाइड. ड्यूरेशन क्या होता है? हाई वाटर और लो वाटर में कितना टाइम डिफरेंस है, आवर्स एंड मिनट्स, उसे बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइड. तो आप मुझे बताओ बेटा, ये जो डाटा हमने लिखा है इससे ड्यूरेशन ऑफ टाइड कितनी आ रही है? So 642. Okay, beta, very good. The duration is coming to 6 hours and 42 minutes. So that is 0801 minus 0119. 6 hours 42 minute is the duration. अब बेटा मुझे रेंज भी बताओ कि टाइड की रेंज कितनी आ रही है. रेंज का मतलब है हाई वाटर हाइट माइनस लो वाटर हाइट. 4.3. Very good, beta. So the range is coming to 5.1 minus 4.8, that is 4.3. Everybody got it, beta? Yes, sir. Okay, very good. अब ये दोनों चीजें हमारी नोटबुक पे आ गई हैं. We have the duration of tide, we have the range of tide. Duration is 6 hours 42 minutes. Range is 4.3 meters. Let's proceed ahead now. अब बेटा जो इसके साथ ग्राफ दिया गया है हम उस ग्राफ में चले जाएंगे. सो कैन यू सी दिस ग्राफ गिवन? एंटोआ पोर्ट के लिए ये ग्राफ दिख रहा है बेटा? एनीवन हैविंग डिफिकल्टी Yes, sir. फाइंडिंग? Yes. वेरी गुड. सो अब इस ग्राफ में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या करना है. सबसे पहले बेटा इस ग्राफ के लेफ्ट साइड में बॉटम में आप देखोगे लो वाटर का हाइट इन्होंने लिखा है और वहां पे एक स्केल दिया हुआ है. इस स्केल पे हमें हमारी जो लो वाटर की हाइट है उसे मार्क करना है. सो आवर लो वाटर हाइट इज 0.8 मीटर्स. हम ये 0.8 को अपने लो वाटर स्केल पे मार्क कर देंगे. इफ यू लुक केयरफुली, जो हमारा स्केल है उनमें जो ग्रेजुएशंस हैं वो 0.2 मीटर की ग्रेजुएशन है. 0.2 मीटर. तो आप बेटा यहाँ पे एक पॉइंट मार्क करो विच इज रेफरेंस टू आवर लो वाटर. आवर लो वाटर इज 0.8. सो 0.8 पे मैंने यहाँ पे ये पॉइंट मार्क कर दिया. कैन यू सी माई पॉइंट ऑन द स्क्रीन बेटा? Yes, sir. Okay, so you have to mark this in your graph.
ओके, सो वंस दिस इज मार्क्ड, अब बेटा हम चलेंगे जो हमारे टॉप लेफ्ट साइड में हाई वाटर का स्केल दिया है। इस हाई वाटर के स्केल में हमें अपने हाई वाटर को मार्क करना है। हमारा हाई वाटर है 5.1 मीटर्स। सो हम 5.1 मीटर्स को इस स्केल पे मार्क करेंगे। सो प्लीज मार्क 5.1 ऑन योर ग्राफ्स। यू कैन सी मैंने अपने ग्राफ पे 5.1 मीटर हाइट को मार्क कर दिया है। मेरे पास एक दूसरा पॉइंट आ गया हाई वाटर स्केल पे। अब बेटा ये जो दोनों पॉइंट आ गए हैं मेरे पास, मैंने इन दोनों पॉइंट्स को एक स्केल के साथ ज्वाइन कर देना है। डू दिस विद पेंसिल बेटा, पेंसिल के साथ करना, पेन के साथ मत करना, नहीं तो तुम्हारी डायग्राम जो है वो यूजलेस हो जाएगी। डू ऑल दिस इन पेंसिल। सो ये जो दोनों पॉइंट हैं, हाई वाटर पॉइंट और लो वाटर पॉइंट, इन दोनों को हमने स्केल के साथ एक लाइन से ज्वाइन कर देना है। सो आई एम गोइंग टू ज्वाइन देम नाउ। ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई ग्राफ पे। सो प्लीज ड्रॉ दिस लाइन बेटा। ये जो लाइन अब आपके ग्राफ पे आ गई है, दिस लाइन इज नोन एज इंटरपोलेशन लाइन। इसको हमारा नाम जो इसने हमने इसको दिया है, दैट इज इंटरपोलेशन लाइन। सो एनीबडी हैविंग डिफिकल्टी गेटिंग द इंटरपोलेशन लाइन? वेरी गुड, सो लेट्स प्रोसीड अहेड। इंटरपोलेशन लाइन हमारी डायग्राम में हमारे कर्व पे आ गई है। लेट्स गो अहेड नाउ। अब बेटा हमने क्या करना है, जिस टाइम के लिए हमें हाइट ऑफ टाइड चाहिए, व्हाट इज द टाइम 0630, वी हैव टू चेक कि ये जो 0630 का टाइम है ये हाई वाटर से कितनी दूर है। ओके, सो आवर हाई वाटर टाइम इज 0119, so we have to find out the difference between 0630 and 0119। बताओ बेटा कितना डिफरेंस आ गया दोनों में? 5 और 11 मिनट। वेरी गुड, सो हमें पता चल गया कि जो हाइट ऑफ टाइड हमें चाहिए वो 5 आवर 11 मिनट आफ्टर हाई वाटर चाहिए। हाई वाटर हो रहा है 0119 पे, हमें जो हाइट ऑफ टाइड चाहिए वो चाहिए 0630 पे। तो हाई वाटर के 5 घंटे 11 मिनट के बाद का टाइड हमें ढूंढना है। अब बेटा क्या करेंगे, जो हमारी डायग्राम में ये आप हाई वाटर का बॉक्स देख रहे हो, ग्राफ के बिल्कुल सेंटर में नीचे चले जाओ। मैंने इसको हाईलाइट किया है रेड कलर के साथ। ये जो हाई वाटर का बॉक्स आप देख रहे हो, इसमें हमने हाई वाटर के टाइम को फिल अप कर देना है। हाई वाटर का टाइम है 0119। लेट्स फिल दिस अप 0119। ये मैंने 0119 का टाइम हाई वाटर के बॉक्स में लिख दिया। अब मुझे जो टाइड चाहिए वो चाहिए इसके 5 घंटे 11 मिनट के बाद। नाउ कैन यू टेल मी बेटा, शुड आई गो इन द प्लस रेंज और माइनस रेंज? प्लस रेंज सर, प्लस। वेरी गुड बेटा, इट विल बी प्लस रेंज। सो हम प्लस वाली रेंज में जाएंगे और 5 घंटे 11 मिनट हमने आगे जाना है। अब बेटा अगर आप ये जो प्लस वाली रेंज है इसे भी ध्यान से देखो, तो आप देखोगे कि हर एक छोटा इंडिकेशन जो इन्होंने हमें दिया है वो 10 मिनट का इंडिकेशन है। 1 आवर के बाद आप देखोगे 10 मिनट्स का एक मार्क इन्होंने किया है, फिर 20 मिनट्स पे मार्क है, 30 मिनट पे है, 40 पे, 50 पे और फिर 2 आवर्स हो जाते हैं। सो ये जो मार्किंग है हर एक 10 मिनट में की गई है।
तो हमें 5 घंटे 11 मिनट आगे जाना है. सो फ्रॉम द हाई वाटर लेट्स गो प्लस 5 आवर एंड 11 मिनट्स. लेट मी शो यू विद द एरो. ये मैंने हाई वाटर से 5 घंटे 11 मिनट आगे का एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट. लेट्स मार्क इट ऑन द चार्ट. ये मैंने चार्ट पे इसको मार्क भी कर दिया है. So anybody having difficulty up to here, up to point A? सर जो छोटी वाली डिवाइड 0.2 डिवाइडेड है तो सर ये अराउंड सर ये तो आगे नहीं होगा 0.2 है ना सर हमारे जो एक एक बॉक्स डिवाइडेड है. बेटा जो 0.2 था ना वो लो वाटर और हाई वाटर की हाइट में था. जो ये टाइम वाला जोन है जिसमें +1 आवर +2 आवर +3 आवर है, ये 10 मिनट का इंटरवल है बेटा एक लाइन में. ओके. सो हमारे पास ये ए पॉइंट आ गया विच इज 5 आवर 11 मिनट आफ्टर हाई वाटर. अब हमने क्या करना है बेटा, हमें इस ए पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचनी है ऊपर की तरफ. तो हम ए पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन अभी ऊपर की तरफ खींच रहे हैं. मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी है. यू कैन सी दिस वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट ए गोइंग अपवर्ड्स. So please mark this line beta. ओके. ये जो वर्टिकल लाइन अब हमने खींची है, अब ये वर्टिकल लाइन डॉटेड लाइन को भी कट कर रही है और सॉलिड लाइन को भी टच कर रही है. जहां पे ये डॉटेड लाइन को टच कर रही है उसको मान लेते हैं पॉइंट बी, ब्रेवो पॉइंट. और जहां पे ये सॉलिड लाइन को टच कर रही है उसे पॉइंट सी मान लेते हैं. यू कैन मार्क इट एज बी एंड सी. ये जो पॉइंट्स है बेटा ये मैं सिर्फ फर्स्ट टाइम हम इसे कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए मार्क कर रहा हूं. जब आप एग्जाम में इसे करोगे तो बिना पॉइंट की मार्किंग के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है. ओके. जब आपको ये प्रैक्टिस हो जाएगी, आप 3 4 5 सवाल इसके प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद फिर ABC नाम अगर नहीं भी दोगे तो भी चलेगा. ओके. सो हमें पॉइंट बी और पॉइंट सी ये दोनों मिल गए हैं. अब बेटा आप देखो जो हमारी रेंज है, व्हाट इज आवर रेंज बेटा इन दिस क्वेश्चन, रेंज ऑफ टाइड 4.3. वेरी गुड. सो मैंने यहां पे लिख दिया हमारी जो रेंज है ये है 4.3. आप देखोगे जो स्प्रिंग रेंज है इस पोर्ट में वो है 5.5 और जो नीप रेंज है वो है 4.0 और जो हमारी रेंज है 4.3 वो इन दोनों के बीच में आ रही है. अब ये इन दोनों के बीच में आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि हमें पॉइंट बी और सी के बीच में इंटरपोलेट करना पड़ेगा. मतलब हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो ना तो हम बी ले सकते हैं बिकॉज बी इज एप्लीकेबल टू 4.0. बी पॉइंट 4.0 की रेंज है और जो सी पॉइंट है ये 5.5 की रेंज है. हमें तो बी और सी के बीच में कोई पॉइंट चाहिए. लेट्स कॉल दैट पॉइंट एज पॉइंट एक्स. अब हमारा जो पॉइंट एक्स है ये बी और सी के बीच में होगा और हमें इसे इंटरपोलेट करना पड़ेगा. सो हाउ डू वी इंटरपोलेट और हाउ डू वी फाइंड दिस पॉइंट एक्स? इस पॉइंट एक्स को हम लोग कैसे ढूंढेंगे? सो लेट मी शो यू. इसको फाइंड आउट करने के लिए बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास. यू कैन सी ये यहाँ पे एक फॉर्मूला अभी मैंने शो किया है. ये है bx
is equal to BC upon 5.5 minus 4.0 multiplied by 4.3 minus 4.0. अब ये फॉर्मूला कैसे आया बेटा, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूं. दिस फॉर्मूला इज नथिंग बट इंटरपोलेशन. Okay, this formula is nothing but interpolation. So I will explain it to you कि ये फॉर्मूला कैसे आया है. Okay, I am changing over the slide to show you कि फॉर्मूला हमने कैसे निकाला है. देखो बेटा, हमने क्या किया, हमने अब पॉइंट x ढूंढना है यहाँ पे. ओके, हमारा जो पॉइंट x है, लेट अस से पॉइंट x is here. We can find out this distance bx. टोटल b to c का जो डिफरेंस है बेटा, just give me 1 minute, there's one more call. ओके बेटा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन. सो हमने बेटा ये पॉइंट x ढूंढना है. बेसिकली b टू c की जो टोटल लेंथ है, b पॉइंट रेफर्स टू द नीप रेंज विच इज 4.0, c पॉइंट रेफर्स टू 5.5. सो bc जो टोटल रेंज है, that is applicable for spring range minus knee range. Okay, so 1.5 मीटर के डिफरेंस के लिए जो हमारा ग्राफ पे डिफरेंस आ रहा है वो है BC. ओके, 1 मीटर के डिफरेंस के लिए ये होगा BC अपॉन 1.5, और हमें जो डिफरेंस चाहिए, हमारी रेंज है 4.3. सो आवर रेंज इज 4.3 माइनस जो नीप की रेंज है 4.0, ये हो जाएगा 0.3. सो इफ वी डू लाइक दिस तो हमें bx डिस्टेंस पता चल जाएगा. सो अब बेटा आप मुझे बताओ कि ये इंटरपोलेशन जो है ये आपको समझ में आई? सर बी रेफर्स टू क्या बताया आपने? ओके, ये देखो बेटा, प्रीवियस डायग्राम में बी पॉइंट डॉटेड लाइन पे है या सॉलिड लाइन पे, किस पे है बेटा? डॉटेड पे. ओके, अब बेटा यहाँ देखो, डॉटेड लाइन के साथ कितनी रेंज लिखी हुई है? 4.0. सो जो बी पॉइंट है, दिस इज बेसिकली फॉर ए रेंज ऑफ 4.0.
सी पॉइंट कौन सी लाइन पे है? सॉलिड लाइन पे है। सॉलिड लाइन के आगे क्या रेंज लिखी हुई है? 5.5। तो जो सी पॉइंट है दिस इज कॉरस्पॉन्डिंग टू 5.5 रेंज। हमें जो पॉइंट चाहिए एक्स पॉइंट, वो कौन सी रेंज के लिए चाहिए? वो 4.3 के लिए चाहिए। सो हमें 4.3 के लिए इंटरपोलेट करना है। तो मैंने इसे कैसे इंटरपोलेट किया? BC डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द टोटल डिफरेंस इन रेंज, दैट इज 5.5 माइनस 4.0, ये हो गया 1.5, मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस फ्रॉम आवर रेंज। हमारी रेंज है 4.3, सो 4.3 माइनस 4.0, इसके साथ मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया। So is it getting clear बेटा? ये interpolation, is it clear? लेकिन अगर सर ग्राफ में पॉइंट करना होगा तो सर हम उसका स्केल के थ्रू उसकी मेजरमेंट लेंगे ना सर? हाँ, ओके। अब जब आप इसे ग्राफ पे करोगे तो आप ये BC डिस्टेंस को मेजर कर लोगे अपने स्केल के साथ। ओके, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किसी में भी मेजर कर सकते हो। लेट अस से आपने मिलीमीटर में मेजर कर लिया, आप उसकी वैल्यू को यहाँ पे डाल दोगे। लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं ये। आप अपने चार्ट पे मेजर करके बता सकते हो बेटा ये कितना आ रहा है डिफरेंस BC? हाउ मेनी मिलीमीटर्स? सर 8 मिलीमीटर। ओके, तो मैंने बेटा यहाँ लिख दिया 8 और इसे डिवाइड करूंगा मैं 5.5 माइनस 4.0, ये हो जाएगा 1.5, और मल्टीप्लाई करूंगा 4.3 माइनस 4.0, ये हो जाएगा 0.3। सो कैन यू टेल मी कि ये कितना आता है? ऊपर जो डिटेल्स दी थी वो 1.6। मीटर्स में थी, हमने 8 मिलीमीटर्स में लिख दिया, तो सर उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? बेटा इंटरपोलेशन कर रहे हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 के लिए पॉइंट C है, 4.0 के लिए पॉइंट B है, हमें 4.3 मीटर्स के लिए ही चाहिए। सो वी आर इंटरपोलेटिंग बिटवीन 5.5 एंड 4.0 फॉर 4.3। यहाँ पे BC आप किसी भी यूनिट में ले लो, आप मिलीमीटर में ले लो, आप सेंटीमीटर में ले लो, आप चाहो तो मीटर में भी ले लो, तीनों केसेस में आंसर सेम आना है। जिस यूनिट में आप यहाँ पे लेंथ डालोगे BC की, उसी यूनिट में आपको BX मिलेगा। ओके, इसको ऐसे समझ सकते हो आप, 1.5 मीटर करेक्ट सर, of करेक्ट, आ गया समझ आ गया। tide. Okay, 1.5 meter of tide is represented by 8 millimeter on the graph. Okay, so यहाँ पे आप लिख सकते हो 1 meter of tide represented by 8 upon 1.5। अब हमें जो डिफरेंस चाहिए, हमारी रेंज है 4.3 और हमें B से डिस्टेंस मेजर करना है। B इज 4.0, तो हमें डिफरेंस चाहिए B से। सो हमने 4.3 माइनस 4.0 किया, ये आ गया 0.3। सो 0.3 मीटर की टाइड के लिए जो हमारे ग्राफ में डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 1.5 इंटू 0.3, ये आ जाएगा बेटा। दिस आंसर विल ऑल्सो बी इन मिलीमीटर्स। Okay, beta, this is understood now. This is the most critical part in full tide calculation. सर ये 1.6 आ रहा है सर। हाँ बेटा, ये 0.16 आएगा, सॉरी हाँ 1.6 आएगा बेटा, दैट्स राइट, 1.6 आएगा ये। एंड इसे आप राउंड ऑफ करोगे तो 2 मिलीमीटर, यू कैन राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट मिलीमीटर। सो ये 2 मिलीमीटर का आंसर आ जाता है। सो B पॉइंट से 2 मिलीमीटर ऊपर आपने X पॉइंट को मार्क कर देना है। ओके, सो बेटा अगर इसमें डाउट आ रहा है आई कैन रिपीट अगेन।
So you tell me now, is it clear to you और इसमें अभी भी डाउट है? एक बार रिपीट कर दो सर एक बार। ओके जी, ऑल राइट, लेट्स रिपीट इट वंस। सर वो फॉर्मूला जो सर लिखा था स्प्रिंग नीप वाला वो दिखा देते सर, नोट करना था। लो बेटा, ये रहा फॉर्मूला, आप पहले फॉर्मूला नोट कर लो। लेट मी इरेज एवरीथिंग, यू कैन नोट डाउन दिस फॉर्मूला। सर वन मोर क्वेश्चन। सर हम ये हाई वाटर के 5 घंटे बाद ले रहे हैं, 5 घंटे 11 मिनट, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं लो वाटर में 1 आवर 31 मिनट्स बिफोर से? नहीं बेटा, वैसा नहीं ले सकते हैं। आई विल टेल यू द रीजन। बेटा, दिस इज नोटेड, फॉर्मूला नोटेड। यस सर, हो गया सर। ओके बेटा, ओके बेटा, हमने ये हाई वाटर से डिफरेंस लिया है, आप लो वाटर से इसे नहीं ले सकते हैं, बिकॉज यू सी दे हैव मेंशन्ड हियर स्पेसिफिकली द सेंटर पॉइंट इज ऑलवेज द हाई वाटर। ओके, आप इस पॉइंट को या इस पॉइंट को लो वाटर कंसिडर नहीं कर सकते हैं, रेफरेंस हमेशा हाई वाटर से ही होनी है। ओके बेटा? यस यस। ओके, अब बेटा मैं एक बार फिर आपको बता रहा हूं ये बी और सी के बीच की इंटरपोलेशन कैसे होगी। जो बी पॉइंट है ये डॉटेड लाइन पे है। डॉटेड लाइन का मतलब है इट इज रिप्रेजेंटिंग ए रेंज ऑफ 4.0 मीटर्स। ये देख सकते हो आप, डॉटेड लाइन मींस ए रेंज ऑफ 4.0। जो सी पॉइंट है ये सॉलिड लाइन पे है। सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स ए रेंज ऑफ 5.5 मीटर्स। ओके, सो हमें जो रेंज चाहिए वो चाहिए 4.3 मीटर्स की रेंज, क्योंकि हमारी जो डेली प्रिडिक्शन हमने निकाली है वहां पे रेंज 4.3 आ रही है। तो अब जो बी पॉइंट है ये 4 मीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज 4 मीटर्स। जो सी पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 5.5 को। हमारा जो पॉइंट है इट शुड रिप्रेजेंट 4.3। सो 4.3 वाला हमें रेफरेंस चाहिए। अभी हम कैसे निकालेंगे? हमने बी टू सी टोटल लेंथ को मेजर किया। बी टू सी की जो लेंथ है वो आ गई हमारे पास 8 मिलीमीटर। तो हमने देखा 1.5 मीटर डिफरेंस इन टाइड, 1.5 मीटर डिफरेंस इन टाइड is equal to 8 millimeter on the graph. ये स्टेटमेंट ओके बेटा, एवरीबॉडी ओके? 1.5 मीटर डिफरेंस इन टाइड इक्वल टू 8 मिलीमीटर ऑन आवर ग्राफ। ये स्टेटमेंट सबको क्लियर है? यस सर। ओके, अब मुझे बताओ कि 1 मीटर डिफरेंस इन टाइड अगर होगा तो ग्राफ में कितने मिलीमीटर होने चाहिए? यूनिटरी मेथड। 8 divided by 1. Very good. So 8 divided by 1.5. This is how much the graph should read अगर हमारा 1 मीटर का डिफरेंस हो। अब हमारा जो एक्चुअल डिफरेंस है वो है 0.3 मीटर का। 0.3 मीटर का डिफरेंस कैसे है? हमारी रेंज जो हमें चाहिए वो है 4.3 और डिफरेंस हम जहां से ले रहे हैं वो है नीप टाइड वाला पॉइंट, ब्रेवो पॉइंट। देखो ब्रेवो पॉइंट से डिफरेंस ले रहे हैं ना, BX। तो 4.3 और 4 में कितना डिफरेंस है? 0.3 का डिफरेंस है। तो 0.3 के लिए हमारे ग्राफ पे कितने मिलीमीटर आएगा? 8 डिवाइडेड बाय 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.3। ये हो गई बेटा इंटरपोलेशन हमारी। दिस विल गिव अस द वैल्यू ऑफ ब्रेवो एक्सरे BX। अब बताओ बेटा, अब ये समझ में आया? Yes sir. अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा किसी को?
वेरी गुड। बस अगर आप ये समझ गए तो टाइड का सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। सो अब मैं आगे चल रहा हूं बेटा, एक्स पॉइंट से आगे चल रहे हैं हम। इंटरपोलेशन हमने देख ली है, ये फॉर्मूला भी हमने नोट कर लिया है। अब हमको पॉइंट एक्स मिल गया है। देखो मैंने यहाँ पे पॉइंट एक्स मार्क कर दिया है। यू कैन सी दिस इज द पॉइंट एक्स विच आई हैव मार्क्ड। अब मैंने क्या करना है बेटा, इस पॉइंट एक्स से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ करना है। सो पॉइंट एक्स से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की। यू कैन सी द हॉरिजॉन्टल लाइन, रेड कलर लाइन ऑन द ग्राफ। ये लाइन जहां पर मेरी इंटरपोलेशन लाइन को कट करेगी उसको मैं रेफरेंस पॉइंट मानूंगा y। सो मेरे पास यहां रेफरेंस पॉइंट आ गया विच इज y पॉइंट। अब ये जो y पॉइंट मेरे पास आया, मैं इस y पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, वर्टिकल लाइन अप एंड डाउन। सो मैंने यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे ये स्केल को टच कर रही है। सो आप चाहो तो ऊपर में भी इसको रीड कर सकते हो, आप चाहो तो नीचे भी इसे रीड कर सकते हो। दोनों में से किसी भी पॉइंट पे आप इसे रीड करोगे, लेट्स कॉल इट पॉइंट Z। तो ये जो पॉइंट है ये आपको आपकी हाइट ऑफ टाइड बता देगा। सो इफ यू ड्रॉ दिस हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन और ये Z पॉइंट आप अपनी डायग्राम में निकालोगे तो आपको हाइट ऑफ टाइड जो है ये 1.6 मीटर्स मिलेगी। Okay, so please do it in your graphs and tell me, did you get this height? सर 1.6 1.7 के बीच में आ रहा है। It's perfectly fine, beta. Yes, sir, 1.78 to 1.8 sir, 1.8. Okay, ठीक है बेटा, ठीक है। So shall I correct it to 1.7 then? सबका 1.7 के आसपास आ रहा है बेटा? 1.8 sir. 1.8 आ रहा है। 1.7 1.8 सर नियर अबाउट दिस वन। ठीक है बेटा, मैं इसको 1.7 कर देता हूँ। ओके, सो अब बताओ बेटा, ये हाइट निकालने का मेथड, अब कहीं से भी कोई भी डाउट आपको आ रहा है एनीवेयर इन दैट मेथड, सो देन वी कैन रिपीट इट। सर ये जो लेके ड्रॉ किया है फ्रॉम पी, बहुत ही डिस्टर्ब आ रही है। बेटा कैन यू पोस्ट योर डाउट ऑन द चैट और यू कैन पोस्ट इट ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, मुझे पता चल जाएगा। आपकी आवाज बहुत डिस्टरबेंस आ रही है बेटा। सर जो आपने एक्स पॉइंट फाइंड किया है, राइट, वो पॉइंट बी से 1.6 डिफरेंस है सर, राइट? यस दैट्स राइट। पॉइंट बी से 1.6 मिलीमीटर दूर है वो। हमने राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि हमारा जो स्केल है वो तो मिनिमम मिलीमीटर ही रीड करता है ना, तो हमने उसे 2 मिलीमीटर राउंड ऑफ कर दिया। सो बी पॉइंट से 2 मिलीमीटर ऊपर हमने एक्स पॉइंट को मार्क कर दिया है। ओके, AC divided by spring range minus nib range into current range minus nib range। सर इसी कंडीशन में नीव रेंज की जगह वहाँ स्प्रिंग रेंज हो सकता है? ओके, सो आप ये बोल रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है हमारा, लेट मी शो यू द फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में हम यहाँ पे बेटा, अदर पीपल कैन प्लीज म्यूट देयर माइक्स। ओके, मच बेटर नाउ। सो वंस यू स्पीक उसके बाद माइक अपना म्यूट कर दो बेटा, बहुत डिस्टरबेंस आती है, आपको पता नहीं चलेगा, बाकी सबको पता चलेगा। सो ओके, अब एक डाउट है बेटा,
जिनको ये डाउट नहीं है उन्होंने इससे कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, ये पहली वार्निंग दे रहा हूं मैं। जिनको ये डाउट नहीं है उनको बिल्कुल सुनना ही नहीं है कि ये क्या डाउट है। अब ये डाउट आया है कि नीप रेंज की जगह पे यहाँ पे हम स्प्रिंग रेंज भी लिख सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे स्प्रिंग लिख सकते हो, लेकिन अगर आपने यहाँ पे स्प्रिंग लिखी तो डिस्टेंस भी स्प्रिंग वाली लाइन से आएगा। मतलब जो डिस्टेंस मिलेगा वो फिर bx नहीं, वो फिर cx हो जाएगा। ऑल राइट सर, फिर हम पॉइंट सी से 1.6 मीन्स 2 मिलीमीटर लेंगे। राइट बेटा, उस केस में 1.6 नहीं आएगा, आंसर बदल जाएगा, और जो भी आंसर आएगा वो फिर आप पॉइंट सी से मेजर करोगे। राइट सर, राइट, थैंक यू। ओके बेटा, ओके। अब बेटा जिनको ये डाउट नहीं था उन्होंने इसको बिल्कुल सोचना है कि हमने कुछ डिस्कस ही नहीं किया। ओके, और बताओ बेटा और क्या डाउट आ रहे हैं। सर ये जैसे इस क्वेश्चन में हम लोग का रेंज था 4.3 मीटर्स, तो ये नीप रेंज के मतलब क्लोज था। अगर Yes. किसी में ऐसा होगा क्वेश्चन में कि स्प्रिंग रेंज के पास में होगा, तो ये फॉर्मूले में कुछ चेंज करेंगे हम लोग अप्लाई करने के लिए? नो बेटा, कोई चेंज नहीं करनी है आपने। आप इस फॉर्मूले को किसी भी डिफरेंस के लिए लगा सकते हो। अगर आपकी स्प्रिंग रेंज के पास की रेंज भी आ रही है तो आप इसी फॉर्मूले को यूज करो। आपका डिफरेंस जो है वो बी पॉइंट से ऊपर आपको मिलेगा एंड दैट विल बी परफेक्टली एक्यूरेट। ओके सर। आप जैसा मैंने अभी बताया कि अगर आप लेना चाहो तो स्प्रिंग से भी ले सकते हो, बट आई डोंट वांट टू गिव यू टू मेनी फॉर्मूलाज, क्योंकि जितने ज्यादा फॉर्मूले आप चेंज करोगे ना उतना बेटा एग्जाम में कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। सो दैट्स व्हाई स्टिक टू वन बेसिक फॉर्मूला एंड फॉलो इट। स्प्रिंग से कर सकते हैं हम, इंटरपोलेट किसी भी पॉइंट से किया जा सकता है, मिनिमम वाले पॉइंट से भी किया जा सकता है, मैक्सिमम से भी किया जा सकता है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो ऐसा होना चाहिए कि आपके माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना करे। सो अगर आप bx वाला फॉर्मूला याद रखोगे तो आपको पता है मेरा रेफरेंस b पॉइंट है। ओके, सो इफ यू आर कंफर्टेबल विद c पॉइंट और आपने c वाला फॉर्मूला यूज करना है, फॉरगेट अबाउट b, देन फिर आप c को ही यूज करो। ओके, जैसे बी के साथ कंफर्टेबल है सर। राइट, ओके, देन कीप ऑन यूजिंग b फॉर विच एवर रेंज इट कम्स। अब देखो एक्स्ट्रापोलेशन तो इसमें होती नहीं है। अगर कभी रेंज 5.5 से ऊपर चली गई तो भी हमें तो ऊपर जाना नहीं, हमें तो फिर सीधा 5.5 वाला पॉइंट ही यूज कर लेना है, ना हमें 4.0 से नीचे आना है। सो अगर 4.0 से नीचे रेंज आती है तो हमें तो 4.0 वाला पॉइंट यूज कर लेना है। सो अगर आपकी वैल्यू इस रेंज के बाहर गई तो फिर तो आप जो भी कर्व उसके पास है उसे यूज कर लोगे। अगर बीच में आई तो ये फॉर्मूले से आप उसे इंटरपोलेट कर लोगे। ठीक है सर। ओके, सो आज का सेशन बेटा यहीं पे रोकते हैं, नहीं तो आप जल्दी जल्दी में लंच भी नहीं कर पाओगे। सो हमने आज स्टैंडर्ड पोर्ट की हाइट कैलकुलेशन जो है ये देखी है। इफ रिक्वायर्ड अगली क्लास में अगर इसमें कोई भी डाउट आपको होंगे तो वी विल कवर अप दोज डाउट्स। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन बाय बाय बेटा। थैंक यू सर, बाय। ओके बेटा, थैंक यू सर, बाय। बाय बाय। थैंक यू सर।